السلام علیکم نمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اٹس گڈ ٹو ہیو یو اگین. سیم ایئر. دا بلو گوز ویل ود یو. اینڈ دا بلیک گوز ویل ود یو. تھینک یو. تھینک یو. یہ وہ باہمی تعریف ہو رہی ہے. نہیں ویسے آئی پرسنلی لائک بلیک دیٹس وائی whoever wears that so I said I usually say مجھے this. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو رائل بلو ہے یہ دس از اے کلر آف وزڈم. تو میں بڑا انسپائر ہوا، لیکن اس سے پہلے مجھے بلو پسند تھا. لیکن میں بلیک سے اس لیے انسپائر ہوئی تھی بیکاز اٹ ہیز دیٹ کیپیسٹی آف ایبزاربنگ ایوری تھنگ. یا تو آئی تھنک دیٹس گڈ اور اچھی چیز ہے. یہ کیریکٹرسٹک اور ٹریٹ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کلر کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پہننے والوں کے اندر بھی ہوگا وہ ٹریٹ. ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. بالکل. بالکل یہ ہونا چاہیے. تو آج کیا ڈسکس کر رہے ہیں ہم نمیرہ؟ اٹس اباؤٹ اے ڈینجرس ایشو، اے سینسٹیو It's, ایشو. I think it is not a dangerous issue. Again, I would say that it's a so-called sensitive issue. کہ اس کو بلاسفیمی. sensitive, yes, اس کو sensitive بنایا جاتا ہے ایکچولی میں. اور کس طرح سے اس کے ساتھ چیزیں جوڑی جائیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ سینسٹیوٹی والے فیکٹر کے اندر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے یوزلی. آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ ایک تو بلاسفیمی لا ہے، وہ تو ایک بڑی اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ ہے. بطور ایک مذہبی شناخت رکھنے کے ہم تمام لوگ بہت سی ہستیوں کے حوالے سے، بہت سی کتابوں کے حوالے سے، بہت سے سینسٹیو ہوتے بھی ہیں، اور تمام لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حد تک. لیکن ایک جو ہمارے یہاں چلن ہے گستاخی کے الزامات کا، یہ دو بہت الگ الگ چیزیں ہیں، اس لا اور اس. تو ہم آج کس پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے؟ مجھے لگتا ہے ہم دونوں پہلوؤں کو دیکھ لیں بیکاز تاکہ لوگوں جو سننے والے ہیں ان کو اس چیز کے درمیان کا فرق ضرور پتہ چل جائے کہ کس چیز کو کس کے اندر کنسیڈر کرنا ہے اور کس کو کس چیز کے اندر فال کرانا ہے. ہمارے لوگوں کی ایک سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں کوتاہی اس معاملے میں آتی ہے، میں ایز اے یوتھ بات کر رہی ہوں، کہ وہ ہوتی ہے نا ایک چیز اکثر ہم اپنے خاندان میں بھی سنتے ہیں کہ وہ جو نوجوان خون ہوتا ہے تو وہ بڑا جو ہے نا وہ تگڑا اور اس طرح والی اس فیکٹر کے اندر ہوتا ہے. تو میں تو ایز اے یوتھ اس پہ بات اگر کروں اور دیکھوں کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان پہ سولوشن دینے کے بجائے اس پہ بات کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. اور اس چیز کو اگر اس طرح دیکھیں نا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس نظر سے دیکھتی ہوں، میں کس طرح اس کو دیکھتی ہوں، تو ایک چھوٹی سی چیز جس کے اوپر آپ اتنا بڑا کوئی امپیکٹ یا اتنی بڑی چیز آپ بولیں یا اس کا بتائیں کہ یہ چیز ہو گزری ہے یا ہو چلی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا اور اپنی سوسائٹی کو سمجھانا اور اس کے کانسیکوینسز کو بتانا، مجھے لگتا ہے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو واقعتاً اس چیز میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ یہ واقعی بلاسفیمی والا کیس ہے یا پھر بلاسفیمس انسیڈنٹ ہے. تو میں تو ابھی تک اسی چیز میں کنفیوز بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ میں تو انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گی، اور کیونکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اور ڈفرینٹ ایریاز کے اندر بھی اس کے بڑے لاز بنے ہوئے ہیں، اور آگے ہم اس چیز پہ بات کریں گے اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ڈسکس ود یو. تو میں اس کو کاؤنٹر ایک کی فارم میں آپ کی طرف ہی سوال لے کے آؤں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے واقعی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ بلاسفیمس کانٹینٹ ہے، بلاسفیمس انسیڈنٹ ہے یا بلاسفیمس ٹاک ہے. لیکن دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بطور مسلمان میں پوری طرح سے ایمان رکھتا ہوں قرآن پہ، اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکر، ہم نے اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا اور شانوں سے نوازا. اور مفسر کرام اس آیت کے تفسیر میں بہت سی جگہوں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اس شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اس شان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اپنے محبوب کی شان میں جب رب کریم اضافہ فرما رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس شان کو گھٹا نہیں سکتی. یہ میری بالکل. ایمانیات کا حصہ ہے. پہلی چیز اس پہ میں بہت زیادہ کلیئر ہوں. دوسرا،
یہ کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا طرز تکلم، جن کا بات کرنے کا انداز مجھے پسند نہ آئے۔ میرے نزدیک وہ انداز، وہ الفاظ، ان الفاظ کے استعمال، ان الفاظ کا چناؤ شاید مناسب نہ ہو۔ لیکن اگین میں اسے ان کی امیچورٹی بھی سمجھ سکتا ہوں۔ ان کا اتنا اسٹرانگ بانڈ یا اتنا اسٹرانگ کنیکشن نہیں ہوگا میرے مذہبی معاملات کے ساتھ، اور وہ شاید میرے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی سینسیٹیو نہیں ہوں گے، تو میں اس سے ان کی سادگی کا یا نہ جاننے کا ایک عنصر سمجھتے ہوئے اس سے درگزر بھی کر سکتا ہوں۔ آ، میں ان تمام معاملات کو جہاں جہاں دنیا بھر میں ریاست ڈیل کر رہی ہے، وہاں وہاں میں ان معاملات کو ریاست کے حوالے سے، میں ریاست کو ان معاملات کو ڈیل کرنے کا ذمہ دار بھی سمجھتا ہوں۔ آ، اور اس حوالے سے جھوٹ بولنے والے کسی بھی فرد کو، جھوٹا الزام لگانے والے کسی بھی فرد کو بھی میں اس کے عمل کو بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ آ، اس طرح کے الزامات ذاتی رنجش کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی اناد کی وجہ سے، یا اپنے کسی جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے لگانے والا بڑا مجرم ہے میری نگاہ میں، لیکن اگین اس کا فیصلہ پھر ریاست نے کرنا ہے۔ آ، دو چیزوں کا میں بالکل کیٹیگوریکلی مخالف ہوں۔ ایک تو یہ کہ خاص طور پہ میں یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا، ہم جس بھی چیز کو، میں یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، مکمل طور پہ میری ذاتی رائے ہے، ہم جس بھی چیز پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے، اس پہ ہمیں اسکالرس کے پاس انہیں کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آیا یہ آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ پھر اسکالرز اور جو ذمہ دار دینی طور پہ لوگ موجود ہیں ان کے علم میں لانے کے بعد میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جائزہ لیں۔ اگر اس طرح کوئی انسٹیٹیوٹ موجود ہے یا اس طرح کے ادارے موجود ہیں یا اس طرح کے اسکالرز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ یقیناً موجود ہیں، تو وہ اس کا جائزہ لیں اور اکارڈنگلی چیزوں کو دیکھا جائے۔ بہت سی جگہوں پہ آپ کنوے کر سکتے ہیں بات کو۔ کلچرز کا ڈفرینس ہوتا ہے نا میرا، آپ کے اور میرے کلچر میں ڈفرینس۔ بالکل۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم چونکہ بلوچستان کی وہ جمپل ہیں، تو ہمارے یہاں سنبھالنا بالکل ایک الگ کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس میرا کوئی مہمان آ رہا ہوگا تو میں آپ کو کہوں گا نمیرا، میرا مہمان آ رہا ہے، مہمان کو سنبھال لینا۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس کی ٹیک کیئر کر لینا، وہ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اسلام آباد، وہ آ رہا ہے، اور یا میرا کوئی جاننے والا ہے کسی کام سے آ رہا ہے، تو اس کی ٹیک کیئر کر لینا۔ اب وہ سنبھالنے کا ایک الگ کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو اردو کے معنوں میں دیکھیں۔ بات کو سنبھال لیا جائے، یا بالکل۔ بات کو رکھ لیا جائے، یا بات پہ پہرا دینا، تو یہ چیزیں بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ زبان کا، بیان کا انداز بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہمیں ملتے ہیں جو اللہ میاں، میاں کا لفظات استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور بہت سے آپ کو علماء ایسے ملیں گے جو انتہائی سخت اس کے اوپر موقف رکھتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ لفظ میاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو اللہ جی کہتے ہیں۔ اچھا، میں جب کسی کو اللہ جی کہتے ہوئے میں نہیں کہتا، میں اللہ کہتا ہوں، لیکن میں جب کسی کو اللہ جی کہتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ وہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کا نا وہ انداز، وہ محبت سے اپنائیت، کوئی کہہ رہا ہے، وہ اپنائیت سے۔ بانڈ۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بطور مسلمان میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں جہاں 99% کے قریب اب مسلمان موجود ہیں، کم از کم پاکستان میں میرے عقائد کو، میرے احساسات کو، میرے نظریات کو کسی قسم کا خدشہ اور خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یہاں کوئی دانا شخص جانتے بوجھتے ہوئے بلاسفیمی کی طرف کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ ڈیبیٹ ہوتی ہے،
मैंने कहा ना अल्फ़ाज़ का मुनासिब चुनाव जो मेरे नज़दीक मुनासिब ना हो, वो हो हुँ, सकता है और हुँ। वो मेरे जज़्बात को भी ठेस पहुँचा सकता है, दैट्स इट। लेकिन कोई भी दाना शख़्स इस मुल्क में रहते हुए ब्लास्फेमस नहीं हो सकता। ये मेरा हुस्न ज़न है, ये मेरा एतमाद है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। अलबत्ता उन लोगों के बारे में मैं इस राय से अ, हट के बात करूँगा, जो लोग ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों से अपना ज़ाती अनाद निकालने के लिए। हुँ, हुँ। हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद में एक वो क्रिश्चियन बच्ची रमशा मसीह वाला केस अगर आपको हुँ, याद हुँ। हो जी, जी। और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो सामने आया कि वो सारे का सारा मामला ही कुछ और था, वहाँ हुँ, ब्लास्फेमी का कोई अमल दखल नहीं था। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो किसी एक भट्टा मज़दूर को उसकी बीवी के साथ मार दिया गया था, शायद मंडी हुँ, भाउदीन के इलाके में। वहाँ जब तहकीक हुई तो पता चला कि वो मामला ब्लास्फेमी से बहुत हट के था। उसका हुँ, ब्लास्फेमी से कोई ताल्लुक नहीं था और वो जुर्म पे पर्दा डालने के लिए उसको ब्लास्फेमी के साथ जोड़ दिया गया और आम लोगों की हमदर्दी ले ली गई। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो जिनकी गुफ्तगू को ब्लास्फेमी के साथ जोड़ के अभी पिछले दिनों में सिंध के एक स्कॉलर हैं, उनका कोई हुँ, 2-3 साल पुराना पढ़ा हुआ एक अफ़साना जिसमें तमसीलात की बात की गई है, जिसमें शायद उन्होंने अपने अंदाज़ में अपने रब से को डिफ़ाइन किया है या उसके बारे में गुफ्तगू की है और उसे लेके अब एक शोर अमर जलील के हवाले से उठा कि वो कहीं हुँ, ब्लास्फेमी का वो हो गए हैं। तो और बड़ा अजीब-सा है हम चूँकि सूफ़ी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे यहाँ तो इन तसव्वुरात पे बड़ी खुल के बात होती रही, मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में बात होती रही। रब को ढोलना भी कहा गया, माहिया भी कहा गया, सजना भी कहा गया। अ, उसे मनाने बुल्ले शाह ने जो गुफ्तगू की है, अगर आज हुँ, के दौर के मुल्ला के सामने वो बात हो, तो क्या बुल्ले शाह ब्लास्फेमस ठहरेगा? इकबाल जो हमारे कौमी शायर कहलाते हैं, इकबाल जब शिकवा लिखते हैं और शिकवे की जो जो ज़ुबान है, जो शिकवे में अंदाज़े बयान है, जो अल्फ़ाज़ का चुनाव है या जिस तरह से ताने दिए गए हैं और हुँ, वो शिकवा खुदा से किया जा रहा है हुँ, और वो बहुत लंबी एक नज़म है, जिसमें बिल्कुल। बार-बार जो है खुदा को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि रहन दे जी, रहन दो, गल ही रहन दो। हुँ, तो क्या इकबाल के शिकवा को ब्लास्फेमस समझा जाएगा, उन तमसीलात को ब्लास्फेमस समझा जाएगा और फिर जवाब-ए-शिकवा को रुजू समझा जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारे शायरों ने, हमारे सूफ़ियाँ ने अपने अंदाज़ में बहुत सी बातें की हैं और अच्छा लोगों को जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें सवाल करने का हक़ हासिल है बहरहाल और हुँ, अगर हम लोगों के पास जवाब देने की विज़डम नहीं है, तो हमें ये चाहिए कि हम किसी वाइज़ को कंसल्ट करें या उन लोगों को किसी वाइज़ आदमी जिसे हम वाइज़ समझते हैं, हुँ, उसके साथ बजाए इसके कि हम जजमेंटल हो के डे ऑफ जजमेंट में जो काम होना है वो आज हम अपने हाथ से करने का हुँ। तय कर लें। मेरे ख़्याल में ये कोई मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं, ये मेरी एक आज़ाना राय है। इट्स माय हम्बल ओपिनियन। मुझे एक चीज़ का अक्सर जिस तरह से आपने कल्चर्स की बात की, आपने बात की कि आप जिस तरह से बलूचिस्तान वाले एरिया को आपने पोर्ट्रे किया फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपने एरिया की बात करें। सेम गोज़ विद इसी तरह से कि हर किसी का अपना-अपना जो एरिया है, तो हर एरिया के हिसाब से ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स हैं। और हुँ, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को अगर अंडरस्टैंड नहीं करें क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी का देखें हिस्सा है। हम हुँ, जिधर से आते हैं, जहाँ उठते हैं, बैठते हैं, वही नेचर और नर्चर वाला फैक्टर होता है। कि हुँ, एनवायरनमेंट भी आपका उस चीज़ में आपको बनाने में बिल्ड करता है आपकी पर्सनैलिटी को और सारी चीज़ों को। तो वो मुझे बात एक बड़ी आपकी यहाँ पे एक ना मैं इसको हाइलाइट इसीलिए कर रही हूँ दोबारा क्योंकि मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लगी कि हर किसी का बात करने का तरीका और रवैया जो है वो मुख्तलिफ है। हुँ, बजाय इसके कि हम लोगों के तरीकों और रवैयों के ऊपर इस उस चीज़ को ब्लास्फेमस कह दें या फिर हुँ, उसको कंसीडर कर लें कि ये ब्लास्फेमी वाला केस है। तो बजाय इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोगों को ये आगाही दें कि भई आपने जो बात की है, बात का जो वज़न है वो कहाँ जाके फ़ॉल कर रहा है या फिर जो बात हुँ, आपने की है वो असल में है क्या? उसको डिफ़ाइन हुँ, करें। हुँ, हमारे पास जो मैंने पर्सनली चीज़ देखी है
पर्सनल एक्सपीरियंस भी फेस किए कि बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग एक-दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, जो कि मैंने हुँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। कि हुँ, इवन यूथ को और यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ कि दे डोंट इवन हैव आइडिया व्हाटएवर दे आर टॉकिंग हुँ, अबाउट। They हुँ, just listen to some of the points and they act, they react, हुँ, they retaliate. This is हुँ, what they do. हुँ, लेकिन काफ़ी हमारे पास ऐसे मुखलिसाना सोच के और मुखलिस ऐसे लोग हैं भी, जो इस चीज़ पे हुँ, बात करना चाहते हैं ताकि इस चीज़ को हल किया जाए। आपको क्या हुँ, लगता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं इस चीज़ को करने में? स्पेशली चलो ठीक है, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपना टाइम गुज़ारा, एक एक सदी गुज़ार दी, उन्होंने अपना टाइम गुज़ार दिया। हुँ, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है या फिर अभी जो यूथ है, जो आप हुँ, समझते हैं कि जो पाकिस्तान को टेक ओवर कर सकती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर सकती है, या इस पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो हमारे वो इस्लामी हुँ। उस फैक्टर को टेक ओवर कर सकती है। हम कहाँ लैग कर रहे हैं? कि हम बच्चों के अंदर या हम अपनी जनरेशन के अंदर इस चीज़ को बिठा नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे असल में, कि उनको सही और गलत की पहचान नहीं हो रही। जब तक दीन को मज़हब को एक कोड ऑफ लाइफ की तरह देखा गया, तो उस मज़हब ने इस खित्ते में रहने वाले मुसलमानों को ये क़ुव्वत दी कि उन्होंने एक मुल्क बनाया। उन्होंने उन्हें ये क़ुव्वत दी कि उन्होंने उस मुल्क को पूरी जो दुनिया थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट इस्लामी मुल्क के तौर पे खड़ा किया। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो मज़हब की बुनियाद पे बने, एक हम और एक इसराइल। जिनके हसूल की बुनियाद जो है वो मज़हब था। और जब हमने पाकिस्तान को हासिल किया, तो हम दीन को, मज़हब को कोड ऑफ लाइफ समझते थे। हुँ, हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते थे। हम बिल्कुल। जजमेंटल नहीं थे। हम कानून की हाकिमियत पे शायद यकीन ज़्यादा रखते थे। हम स्टेट के करने वाले काम नहीं करते थे। हम जो रोज़े महशर जो होना है हिसाब-किताब, वो हम खुद नहीं करते थे। डेफ़िनिटली। ग्रेजुअली हुआ ये कि मज़हब कोड ऑफ लाइफ के साथ-साथ एक प्रोडक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस होता है एंड 70s पे। हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही थीं। ईरान में एक इनकलाब आता है, जिस इनकलाब का इंट्रोडक्शन जो है वो एक मसलक के इनकलाब के तौर पे होता है। जबकि इनकलाब लाने वालों का दावा उसे एक मज़हब के इनकलाब के तौर पे था। हुँ, फिर हमारे साथ नेबरहुड में अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ रशियन इन्वेजन होती है, वहाँ रेज़िस्टेंस मूवमेंट को खड़ा किया जाता है, फिर हुँ, उसमें हुँ, पेट्रो डॉलर इंजेक्ट होता है, पेट्रो डॉलर जब इंजेक्ट होता है, उस कोल्ड वॉर सीन में, वहाँ फिर मज़हब एक टाइटल बनता है जिसकी बुनियाद पे वो सारी की सारा जंग हमारे हमसाये में होती है और उसको फ्यूल यहाँ से किया जा रहा होता है। हुँ, और हुँ, यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए अगेन जो बैनर लगता है, वो फिर मज़हब का लगता है और फिर मज़हब को इतनी शिद्दत के साथ पेश किया जाता है कि मज़हब के बाकी तमाम पहलुओं पे शायद पर्दा डालने की कोशिश करते हुए मज़हब का जो जंगी पहलू है, जो जंगी तस्वुरात हैं, उनको फैंटेसाइज़ करके पेश किया जाता है। उनकी पैकेजिंग की जाती है, उनको हुँ, मार्केट में लाया जाता है। उसका मिन हैसुल माशरा जो असर हम कबूल करते हैं, मेरी जनरेशन जो 78 की बर्थ हूँ, तो अर्ली 80s में जब हमारी जनरेशन आँखें खोलती है, हमारे इर्द-गिर्द का मंज़रनामा जो है, वहाँ पे जिहाद है, वहाँ पे ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात हो रही है, एजेंडा की बात हो रही है, वहाँ पे छोटे जो ग्रुप्स हैं, उनको काफ़िर-काफ़िर कहने की बात हो रही हुँ, है, वहाँ स्लोगन्स लिखने दीवारों के ऊपर शुरू हो गए हैं, वहाँ पे मज़हब की तो हम जजमेंटल होना शुरू हो गए थे उस वक़्त। हुँ, हुँ, अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ़ रियासत नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, वो इस सोच की बैक पे मौजूद थी। क्योंकि उससे इस सोच की तरोीज फ़ायदेमंद उसके लिए साबित हो रही थी। उसका रिक्रूटमेंट का जो वो सारा एक प्रोसेस था, वो बहुत तेज़ी से अमल पज़ीर होता था और उसको मुजाहिद मिलते थे, जो फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान जाते थे और फिर वो रशियन फ़ोर्सेस के साथ लड़ते थे। तो ये एक पूरा एक ऐसा मैकेनिज़्म था, ये वो ज़लज़ला था जिसके आफ्टर शॉक्स अब तक हम भुगत रहे हैं। वो रवैये हमारी हड्डियों में उतर चुके हैं। वो रवैये हमारे माशरे में दाखिल हो चुके हैं।
उन रवैयों को ग्लैमराइज़ करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं अब। तो अब वो प्रोडक्ट किसी न किसी तौर पे मज़हब की बजाय जो बाहमी नफ़रत का प्रोडक्ट है, अ, उसे तराशा गया, उसकी पैकेजिंग की गई और वो बिकना शुरू हुआ। और दूसरी जानिब हुआ ये कि फिर हम 2001 के बाद जाते हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म में। अब हुँ, वो जिहाद जो है, जो जिहाद था, वो फ़साद के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है दुनिया भर में, और जो मुजाहिद थे उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है। अब हुँ, यहाँ एक और प्रोडक्ट लॉन्च होता है व्हिच इज़ पीस, जो अमन है, बिल्कुल। जो डी-रेडिकलाइज़ेशन की बात होती है, हुँ, एंटी टेररिज़्म एक्टिविटीज़ की बात। तो अब मार्केट में 2 बड़े प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एक जो पहले से मौजूद था और दूसरा जो उसको चैलेंज कर रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अब बिकना शुरू हो जाते हैं। बेचने वाले भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, इन्वेस्टर भी मौजूद है, और जिन-जिन के इसके साथ मुफ़ादात जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग फ़ील्ड के अंदर मौजूद हैं। फिर अगले 20 साल ये बिकता है, और अमन उसी वक़्त तक एक प्रोडक्ट के तौर पे बिकेगा जब तक बदअमनी मौजूद रहेगी। तो बदअमनी का वजूद भी इस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, तो उस वजूद को भी अक्सर नहीं ख़त्म किया जाता। तो कहीं न कहीं शिद्दत, अच्छा फिर इस शिद्दत को जो है वो मुख्तलिफ़ तबका हाय फ़िक्र और मुख्तलिफ़ जो सोसाइटी की शोबे हैं, वो भी अ, अपने-अपने अपनी-अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने-अपने हालात के मुताबिक, अपने-अपने मुफ़ाद के मुताबिक वो इसे इस्तेमाल करते रहे। हमने देखा यहाँ पे एक मसलकी इकाई को अ, बुरी तरह से पिछले 30 साल में टारगेट किया गया। उनके मज़हबी नज़रियात की वजह से, उनके मसलकी नज़रियात की वजह से उन्हें बुरी तरह से टारगेट किया गया, उनसे हक़ ज़िंदगी छीन लिया गया। हुँ, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, उनके रिएक्शंस भी आए, मुख्तलिफ़ लेयर्स में आए, मुख्तलिफ़ सतहों पर आए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत थी, जिनका ताल्लुक सूफिया को मानने वालों से था, वो इन तमाम जो मसले की जंग थी, इससे कोई पिछले 5 साल, 7 साल पहले तक बिल्कुल र फ़ासले पे बैठी हुई, और इनके दरमियान प्लेयर बनने को किसी तौर पे तैयार नहीं थी। लेकिन पिछले 5-7 साल में ग्रेजुअली छोटी-छोटी इस तरह की कंपोनेंट्स तैयार हुए या किए गए कि जिन्होंने इस तबके को भी इसकी एग्रेशन को जो है ना ज़ुबान दी। इसका जो इसके अंदर एक वो मौजूद था, उम, एक एहसास जो मौजूद था हुँ, कि हम किसी तौर पे अकेले हैं या हमारी कोई शुनीद नहीं है, हम अक्सरियत में होने के बावजूद इग्नोरेंस का शिकार हैं। उस हुँ, उस जज़्बे को एक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर हमने देखा कि अब आज के दिन में अगर हम बात करें, तो ये जो रिएक्शनरी रवैये या आपको वो दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे मोस्टली उस तबके की तरफ से आ रहे हैं, जो तबका सदियों से एक पुरअमन तबके की हैसियत से जाना जाता था, सूफ़ी मशरब लोगों के साथ अपने ताल्लुक की वजह से जाना जाता था। यहाँ पंजाब में पिछले दिनों एक बैंक मैनेजर को एक गार्ड ने मार दिया, और गार्ड मारने के बाद आप वो उसकी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती रही। गार्ड मारने के बाद जो है वो बड़ा इश्क़ रसूल में भरे हुए नारे लगाता हुआ खुद थाने की तरफ जा रहा है। उसे एहसास था कि मैं अब अपने आप को इसके साथ टैग कर लूँगा और ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दूँगा मैनेजर पे, हुँ, और मसला सॉल्व हो जाएगा और मैं हीरो बन जाऊँगा, और ये होगा। और हमने इस तरह से ग्लैमराइज़ किया भी है लोगों को। हमने बिला सोचे समझे हम बहुत सी चीज़ों को अ, बहुत सतही अंदाज़ में, जो बहुत अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। हुँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज उस वक़्त आता है जब मैं देखता हूँ उन लोगों को कि जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ को जो हमारे ईमान से मुतल्लिक़ा हैं, बहुत सतही अंदाज़ में डील करना शुरू करते हैं, तो मैं घबरा जाता हूँ कि ये लोग कहीं किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे, और अल्लाह से अमान माँगता हूँ कि या अल्लाह इस ऐसी किसी आज़माइश से बचाना कि हम बहुत किसी हिसास मामले को बहुत सतही तौर पे जब हम डील कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उस वक़्त भी
उस मामले की हैसियत को के साथ अपने अमल को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते। हुँ। तो ये यहाँ पे भी अब होता है। एक चीज़ आपने बड़ी खुल के इस चीज़ पे बात की सारी डिफरेंट सेक्ट्स को भी और डिफरेंट सारी चीज़ों को लेके आपस में। आप ये नहीं समझते कि कहीं न कहीं रियासत इस चीज़ में फ़ेल हो गई है या फिर हो रही है कि एक बच्चे के दिमाग में या फिर एक यंग जनरेशन वाला ऐसा अ, एक एक सरमाया जो हमारे पाकिस्तान का है, उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ों का जाना कि हम जैसे आपने बात की कि हम ग्लैमराइज़ कर रहे हैं सो कॉल्ड ग्लैमराइज़ेशन हम जिसको कहते हैं, हुँ, कि कोई इस तरह की चीज़ करता है तो वो ठीक है जी नारे लगा के एंड देन सम ऑफ द पीपल कम इन देयर फेवर और फिर उस चीज़ पे बात की जाती है और अगर जो लोग उस पे बात नहीं करते हैं तो उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं कि भई आप मुसलमान नहीं हैं कि आप इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रहे, कि अल्लाह और रसूल पे कोई बात कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ का कोई एक्शन नहीं ले रहे। हुँ, देखिए, ये तो मेरा मानना है कि बहुत से ऐसे केसेज़ होते हैं जिस पे एक्चुअली बात करनी चाहिए कि जिस पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑथेंटिसिटी है कहीं पे कि आपकी आँखों के सामने इस चीज़ ये बुराई की जा रही है तो आप उस पे बात करें। लेकिन कहीं न कहीं रियासत इस चीज़ के अंदर फ़ेल तो नहीं हो गई है हमारी कि उसको असल में ये चीज़ का पता नहीं है कि कौन-सी चीज़ों को किस चीज़ फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व करना है कि वो एक्चुअली ब्लास्फेमस वाला कंटेंट है या ब्लास्फेमस वाली एक्टिविटी है। बल्कि रियासत खुद ही कन्फ्यूज़ बैठी हुई है कि हम कौन-सी चीज़ को किधर कंसीडर कर लें और वो अवाम के प्रेशर में आ जाती है, कि अगर एक जगह पर बहुत सारे लोग, हज़ारों में लोग इकट्ठे हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई हम तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और हम इस चीज़ को इस तरह लेके चलेंगे मार-धाड़ वाले चक्कर में। तो फिर रियासत कहीं एक वो डर के तो नहीं बैठ जाती इस चीज़ के ऊपर कि भई हज़ार लोग एक तरफ आ गए, तो चलो ठीक है इसने वाक़ई कोई इस तरह का गलत काम या गलत बोल बोले होंगे जिसको एक्चुअली ब्लास्फेमी के अंदर कंसीडर किया जाए। हम यहाँ कितना लैग करते हैं, बहुत स्पेसिफिकली ज़्यादा। हम नहीं। चलिए रियासत की मैं इसलिए यहाँ पे बात करती हूँ क्योंकि दे हैव द अथॉरिटी टू डू हुँ, टू गिव ऑर्डर्स, टू हुँ, टू टेल पीपल कि एक्चुअली व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। और हुँ, हमारी जो अक्सर जो यंग जनरेशन है उसके अंदर हमारे कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इंसान अपना वो थॉट वाला पूरा प्रोसीजर जो है वो हुँ, करता है। तो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, एडल्ट्स जो हैं हमारे वो इस चीज़ को देख रहे हैं और उस चीज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई लीडर है, मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ, तो ऑटोमैटिकली वो अगर गलत भी बोल रहा है, तो मैंने उसको जस्टिफ़ाई करना ही करना है। तो हमारी पूरी अगर रियासत, हुँ। हमारी गवर्नमेंट, हमारी और दूसरे इदारे जितनी भी चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को देख रही हैं, लेकिन वो सिर्फ़ अवाम के प्रेशर में आके उस चीज़ को ना कर सकें, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ इस ये कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लैग करते हैं? आई एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे रियासत जो है वो अभी मुझे ये इन मामलों में रियासत कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रही। मुझे लगता है कि रियासत भी लर्निंग के फेज़ से गुज़र रही है, सिचुएशंस में से गुज़र रही है और हर सिचुएशन के बाद एक नई सिचुएशन डेवलप होती है। और जब आप कोल्ड वॉर में थे तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं था। उस वक़्त आपके चैलेंजेज़ जो है वो कोल्ड वॉर थी। उस वक़्त आप एक इंटरनेशनल अलायंस का हिस्सा थे और आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि जिन लोगों को आप इस वक़्त भेज रहे हैं, जिन लोगों के आप मज़हबी जज़्बात को मम्हीज़ लगा रहे हैं और उन्हें उस बैटलफ़ील्ड में भेज रहे हैं, ये लोग जब वापस पलटेंगे, तो ये फायर बैक कैसे करेंगे? ये आपकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? जो इदारों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ, अपनी रिक्रूटमेंट को तेज़ करने के लिए, वो इदारे यहीं मौजूद रहेंगे। उन इदारों में से कितने इदारों की क्रेडिबिलिटी है और कितने इदारे रे वाक़ई ही माशरे को बेहतर अंदाज़ में कुछ कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँगे। अ, हुँ। आपने उसको नहीं सोचा था। आपकी रियासत ने उसको नहीं सोचा था, ना ही कैलकुलेट कर पाए थे। तो ये जो एडहॉक पॉलिसीज़ हम इख्तियार कर रहे हैं, ये हमारी रियासत की इमैच्योरिटी तो है। लेकिन मुझे कहीं ये लगता है कि रियासत आहिस्ता-आहिस्ता सीख भी रही है और अच्छी बात ये है कि रियासत गलतियाँ नहीं दोहरा रही। रियासत ने जिस तरह से जो पॉलिसी उसकी कोल्ड वॉर में रही, वो पॉलिसी फिर उसने डिसकंटिन्यू की। फिर अब आके रियासत ने बड़े स्ट्रिक्ट हुँ। एक्शंस लिए हैं। टेररिज़्म को देखा है, टेररिज़्म के जिन को दोबारा बोतल में बंद किया है, उसमें उन्होंने बड़ा सख्त काम भी किया है। फिर हमारे कुछ लोगों के ऊपर अगर रियासत को ये शक गुज़रा कि वो यहाँ से जाके सीरिया में लड़े हैं या उन्होंने
کسی اور ملک کی وجہ سے کسی اور بیٹل فیلڈ میں جا کے اپنی شجاعت کا لوہا منوانے کی کوشش کی، تو ریاست نے پھر ان کے کان بھی مروڑنے شروع کیے۔ اب ہم سن رہے ہیں کچھ مسنگ پرسن کیسز آ رہے ہیں، کراچی میں کوئی دھرنا شرنا بھی چل رہا ہے، اور ہوں، لیکن یہ بھی میٹر آف فیکٹ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ زینبیون اور فاطمیون بریگیڈز جو ہیں وہ پاکستان کے چند جذباتی نوجوانوں پہ مشتمل تھیں۔ ایران میں موجود قبرستان بھی یہ بتاتے ہیں اسٹوریز کہ وہاں پاکستانی مجاہدین کی قبریں بھی موجود ہیں، ان کو ایوارڈ بھی کیا جاتا ہے، ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب ریاست کا ہم رویہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ذمہ دار رویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ریاست سعودی عرب کی اور ایران کی جو پراکسی وار ہمارے پاس سالوں چلتی رہی، ڈیکیڈز تک چلتی رہی، اب ریاست اس میں کوئی رول پلے کرنے کو تیار نہیں، اسے ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی ہمیں ایک اچھا وہ لگتا ہے۔ آ، جہاں تک بات رہی ماس ریئیکشن کی، اس سے ریاست گھبراتی ہے، ضرور گھبراتی ہے۔ وہ کہیں کوئی 2 4 6 8 ہزار لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جیم کر لیتے ہیں فیض آباد کو، تو ہوں، ریاست مجبور ہو کے ان سے بات کرتی ہے، ہوں، ریاست کوشش کرتی ہے کہ سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ ہوں، یہ ریاست نے لال مسجد آپریشن میں سیکھا۔ ہوں، تو ریاست کسی طور پہ کوئی دوسری لال مسجد نہیں بنانا چاہ رہی، یا لال مسجد ٹائپ ہوں، اسٹوری نہیں بنانا چاہ رہی۔ اب ریاست ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ریاست ان گروہوں کو بھی ڈیل کرنا سیکھ جائے گی، اور میری یہ دعا ہوگی کہ ریاست یہ جلد از جلد سیکھے، ہوں، اور لوگ بھی ہم یہ سیکھیں کہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ہم اس ریاست میں رہتے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن کے پابند ہیں جس پہ پوری ریاست اپنا کاروبار حکومت چلاتی ہے، معاملات ریاست چلتے ہیں، اور ہوں، ہمیں اگر آ، دوسرا میرے لیے یہ بڑی بے چینی کا باعث بن جاتا ہے کہ جب ہم فیکٹ چیک نیشن نہیں ہیں، الزام کسی نے لگایا، ہائپ کریٹ کی، ہم فٹافٹ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، ہم اس ایسے پہ ہی ہے۔ جذباتی ہو گئے۔ اچھا، جب اس کا فالو اپ لیا اور فیکٹ چیک کیے اور پتہ چلا کہ وہ الزام لگانے والے کا الزام شاید ٹھیک نہیں تھا، تو وہاں ہم بالکل جذباتی ہو کے یہ نہیں کہتے کہ یار جس نے جھوٹ بولا ہے اور دوسرے کی زندگی تباہ کر رہا ہے اس سے بھی تو نپٹو۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ کو نمیرہ یاد پڑتا ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کسی ایسے شخص کو سزا پاتے ہوئے دیکھا ہو جس نے جھوٹا بلاسفیمی کا الزام لگایا۔ بالکل ایسے ہی۔ جن پہ اس طرح کے الزام لگے ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہم نے دیکھی، لیکن جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے اور بعد میں فیکٹ چیک سے پتہ چلا کہ وہ جھوٹے الزام ہیں، وہ وہاں لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس آدمی نے جب اتنے متبرک ناموں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے یا اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے کسی جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا، تو ہوں، بلاسفیمی کا مرتکب تو یہ مجرم ہوا۔ بالکل۔ اچھا، وہاں آ کے پھر اسے اسپیئر کر دیا جاتا ہے، ہم بالکل ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک احساس ذمہ داری کا تھوڑا سا فقدان ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہمیں شاید اس پہ من حیث القوم ہمیں اور میچیور ہونا پڑے گا۔ میں بات تو ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا ریاست کو کہ وہ کہاں لیک کرتی ہے اور سیکھ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، دیٹس اے پازیٹیوٹی، بیکاز ہمیں ہر چیز کے اندر ایک کہیں نہ کہیں مثبت چیز جو ہے وہ تو دیکھنی ہے اور ہوں، ڈھونڈنی بھی ہے۔ ہوں، تو وہی جو آپ نے بات کی کہ کہیں پہ بھی اس طرح کا کیس ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے غلط الزام لگایا تو ان کو سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوں، وہ خود گلٹی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، امبیرسمنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مسئلہ وہی بات ہوتی ہے کہ دونوں طرف کی ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم ہوں، ریاست کو تو درمیان میں لا رہے ہیں کہ ہاں اس کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے یا ڈاؤن فال آتا ہے، لیکن اگر صرف ایک انسان کی بات کریں یا پھر اس بندے کی بات کریں جو ایکچولی اس ایکٹ کو جس نے غلط ایک تاثر دیا ہے، ہوں، وہ بھی تو یہ چیز ہو گئی کہ خود ایک انسان بھی اس چیز کے اندر انوالو ہے کہ ہوں، پرسنل اگر آپ اس چیز پہ جا کے دیکھیں کہ ہم صرف اگر ریاست کو ہی آگے لے کے چلیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہوں، وہ لرننگ فیز میں ہے، اس نے یہ چیز کیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا، لیکن وہ انسان جس نے یہ ساری چیزوں کو لے کے چلا ہے، ہوں، غلطی کو میں بات کر رہی ہوں کہ اس ہوں، غلطی کو لے کے چلا ہے کہ اس نے غلط الزام لگائے ہیں اور بعد ہوں، میں وہ چیز پروف ہو گئی۔ تو یہ اس کے اندر ایک اگر اسلامکلی بھی ہم بات کریں، ہم کیونکہ بلاسفیمس
इसी को ज़्यादा लोग कंसीडर करते हैं कि आप हुँ, इस्लामिकली कोई इस तरह का चीज़ कर दें। इस्लामिकली भी बात करें तो इंसान का ज़मीर इस चीज़ पे ऐसा हो गया है कि इंसान जो चीज़ अगर गलती कर भी रहा है या गलत बोल भी रहा है, तो इस चीज़ का उसको गिल्टी नहीं है या इस चीज़ हुँ, की एम्बैरेसमेंट नहीं है कि कल को अगर मैं इस चीज़ से झूठा साबित किया जाता हूँ, तो कल को मेरा क्या होगा? हम हुँ। उठा के पूरा मलबा रियासत पे भी नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। हम लोगों पे भी डाल सकते हैं। हुँ, बिकॉज़ लोगों पे जब डालेंगे एक एक तब मुझे लगता है सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड तब होगी। तब हुँ, इंसान को लगेगा कि हाँ, मैं अगर इस चीज़ को गलत कर रहा हूँ और हुँ, कल को मैं पकड़ा जाता हूँ, तो हुँ, मेरे ऊपर भी तो केसेज़ हो सकते हैं, मेरे ऊपर हुँ, भी तो हुँ, रियासत कोई ना कोई हमला कर सकती है। हुँ, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ा, जो चीज़ सुनी, समझी, जो केसेज़ हमने देखते हैं यूजुअली जो रिपोर्ट होते हैं टीवी पे, उसमें कि इस तरह की कोई चीज़ है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफ़ाई अगर कर लें तो हमने सिर्फ़ इतना ही सुना है कि ब्लास्फेमी का कोई चीज़ आई हुँ, है हुँ, और लोगों के ऊपर फ़तवा लग के और उनको जो है वो दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ, दैट्स इट। हुँ। अच्छा तो नमीरा मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू एक एक मुझे बात ज़हन में आ रही थी और मैं वो भी पूछना चाह रहा था आपसे कि कहीं आपकी नज़र से ये गुज़रा कि जब मंदिर किसी को जलाया जाता है तो वहाँ 295 सी को एफआईआर का हिस्सा बनाया जाता है। किसी चर्च पे हमला होता है तो वहाँ 295 सी को एफआईआर का हिस्सा बनाया जाता है। सिंध में अभी पिछले दिनों एक मंदिर पे हमला हुआ और हुँ, वहाँ पे हुँ। बुतों को तोड़ा गया तो चूँकि 295 सी स्पेसिफिक कर जाता है इस्लाम की जुज़ियात के साथ या इब्राहिमिक फ़ेथ की जुज़ियात के साथ। लेकिन जो 295 है ये मज़ाहिब की बात करता है। इसमें तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दसात की बात होती है, उनके एहतराम की बात होती है। तो वो हमारे जो हिंदू दोस्त जिन जिन भी अपने भगवानों की परस्तिश करते हैं उनके लिए वो इंतहाई मुतबर्रिक हैं, उतने ही मुतबर्रिक हैं जितना हमारे नज़दीक हमारा तसव्वुर रब है। उनके बिल्कुल है। नज़दीक वो उनका उनकी एसोसिएशन और उनकी अ, मज़हबी मामलात उतने ही मुतबर्रिक हैं और हमारे लिए भी उनके मज़हबी मामलात का मुतबर्रिक होना उतना ही सेंसिटिव होना चाहिए जितना हमारे लिए अपना है। यही सूरत-ए-हाल हमारे क्रिश्चियन दोस्तों के साथ है और एक एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं आपने इस तरह का कोई मंज़रनामा कभी देखा क्या आपको याद हो? और कि कहीं जो है वो हिंदुओं के साथ या ईसाइयों के साथ बेइंतहा ज़्यादतियाँ हुई हैं इस माशरे में। अ, आपने कहीं देखा हो कि 295 उन केसेज़ में एक्टिवेट हुआ। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में जो 3 बड़े मज़हबी तबक़ात, इस्लामी मज़हबी मसालिक पाए जाते हैं, उनमें से एक दूसरे को काफ़िर कहता है और तीसरे को मुशरिक कहता है और ये इनमें से जो सबसे बड़ा है वो उस कहने वाले को गुस्ताख़ रसूल कहता है और ये हिस्टोरिकली कह रहे हैं। ये सदियों हुँ। से एक-दूसरे को कह रहे हैं, तकरीबन 1 सदी तो हो गई है। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में लोगों को खुद ये फ़ैसले करने की इजाज़त मिल जाएगी, तो ये एक-दूसरे के ईमान का, शिर्क का, गुस्ताख़ रसूल होने, ना होने का जब ये फ़ैसला खुद करेंगे और अपनी क़ुव्वत-ए-बाज़ू से करेंगे, तो जो 22 करोड़ अफ़राद के माशरे में अनारकी फैलेगी, उसे कौन समेटेगा? मैं इसको अपनी पिछली वाली बात से ही जो है ना वो जोड़ देती हूँ कि हम रियासत के ऊपर तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमारी रियासत इस चीज़ में फ़ेल हो गई है या फ़ेल हो रही है। लेकिन अगर देखें बात करें कि एक इंसान से ही एक चीज़ शुरू करें, आप जब पौधा भी लगाते हैं, जब उसके अंदर बीज एक डालते हैं, तो उसके अंदर उसको चीज़ें उसके अंदर पानी अ, उसके अंदर हवा होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हुँ, होनी चाहिए। तो हुँ, सेम गोज़ विद दैट कि जब आप एक इंसान की बात करें और फिर उसके बाद रियासत की बात करें, हुँ, कि इंसान खुद कितना कायल है इन चीज़ों के ऊपर। इंसान हुँ, खुद कितना इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझता है कि हाँ, वाक़ई ये चीज़ें गलत हैं। आपने हुँ, जो वो कम्युनिटीज़ की बात की तो मैंने काफ़ी अरसा अपना तकरीबन शुरू से मेरी पैदाइश और वो सारी चीज़ें मैंने जैकोबाद जैसे छोटे शहर में गुज़ारा, तो वहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि एक तरफ मस्जिद है, हुँ, दूसरी तरफ चर्च है और उसके साथ तीसरी तरफ मंदिर है। हुँ, लोगों में कभी भी इस तरह के उन्होंने फ़िरकावारियत वाला फैक्टर या फिर इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब वाला फैक्टर नहीं हुँ, रखा।
ना हुँ, कभी मैंने देखा वहाँ पे हुँ, इतना इंटरफेथ हार्मनी वाला फैक्टर था कि हम लोग मंदिर में जाके अपने-अपने दोस्तों को दिखाते भी थे। हुँ, हम क्रिश्चियंस के उधर चर्च में भी जाके, लेकिन कहीं न कहीं 1-2 बार मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूँ कि मेरी बहुत से ऐसे जो है वो दोस्त अहबाब हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं। तो वो अक्सर मैं उनसे जानने की कोशिश करती थी कि उनको कहीं पाकिस्तान में रहते हुए या फिर उस छोटे से शहर में रहते हुए या वो जब बाहर जाते हैं, तो उनको कहीं कोई एक ग्लिच तो नहीं महसूस होता या इस तरह की चीज़ तो नहीं महसूस होती कि उनको लगे कि उनका अपना आप जो है वो महफूज़ नहीं है। हुँ, कन्वर्जन्स की बातें हम सुनते हैं कि कन्वर्जन हो जाती है, फिर उस पे काफ़ी लंबी बहस होती है कि वो वाक़ई कन्वर्जन हुई थी या नहीं हुई थी, लोगों ने हुँ, कैसे इस चीज़ को देखा। हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं जो इस्लामी इस चीज़ पे बात करते हैं, वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हुँ, लेकिन जो पीछे फैमिली है असल में, हुँ, जो पीछे फैमिली है वो इस चीज़ से कितना मुतासिर होती है। मैंने तो पर्सनली ऐसी फैमिली से मैं मिली हूँ कि जिनके साथ ये इंसिडेंट हुए, कन्वर्जन हुँ, वाला फैक्टर हुआ। तो हुँ, वो तो ऐसे आप समझे ना कि अगर किसी की फैमिली में से किसी कोई बेटी का इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हुँ, फैमिली पूरी की पूरी टूट जाती है। हुँ, कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी, फिर उसके बाद मंदिर वाली जो आपने चीज़ कही, उसमें मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से जो है उन्होंने बड़ी इस पे आवाज़ उठाई। फिर इसके अलावा सिर्फ़ सिंध में नहीं, केपीके में आपने देखा होगा कि जो बड़ा मंदिर था हुँ, उसको फिर सिखों की कोई इस तरह से चीज़ हुई जिसको उन्होंने बड़ा इस हुँ, चीज़ से खराब करने की कोशिश की। लेकिन मैं जब पॉज़िटिव चीज़ें देखती हूँ कि सिखों की एक कम्युनिटी है जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत से हमारे लोगों को इफ्तारियाँ कराती है, बहुत सी ऐसे हुँ, ऐसी हुँ, पॉज़िटिव चीज़ों के अंदर जो है वो जाती है। तो तब देख के कभी-कभी ये चीज़ अंदाज़ा होता है कि इंसान खुद कहीं न कहीं लैग कर रहा है। हुँ, हम हुँ, रियासत पे तो बहुत जल्दी बात करते हैं, हम हुँ, गवर्नमेंट पे पहुँच जाते हैं कि भई हुँ, पॉलिसी ठीक नहीं है, ये ठीक हुँ, नहीं है। लेकिन आप पहले ये तो देखें जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो हमारा हिस्सा है ऑलरेडी, हम हुँ। उस पे कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। या जो हमारी रवायतें हैं, जी। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा फ़ोक है, जो हमारी तारीख़ है, हुँ, उसमें तो हुँ। ये मिसालें नहीं मिलती 40 साल पहले तक, बिल्कुल जिनको ऐसे ही आज है। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम उनसे भी तो डीअटैच हो गए हैं ना। हम बिल्कुल अगर ऐसी उनके साथ ही रीअटैच हों, तो शायद बहुत से मसाइल वैसे ख़त्म हो जाएँ। मैं इसीलिए इस कशमकश में असल तकरीबन कुछ टाइम के लिए इस कन्फ्यूज़न में यूजुअली आ जाती हूँ कि जो हमारे बड़े जो आबाओ-अजदाद से हमारे फ़ोर-फ़ादर्स थे, उन्होंने भी अपना टाइम गुज़ारा, बड़े हुँ, हँसी-खुशी। कभी हमने कुछ इस तरह की हम अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो कभी हमारे अम्मा-अब्बा ने बैठ के कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बताई या नहीं सुनी हमने। हुँ, लेकिन मैं इसीलिए शुरू में जब मैंने सवाल किया था कि हमारी जो आने वाली नस्ल है असल में, हम उसके हुँ, लिए कितना उनको हमारे पास प्रिपेयर्ड कोई पॉलिसीज़ या प्रिपेयर्ड पेपर्स मौजूद हैं, जिनके बेसिस पे हम उनको समझा सकें कि ये चीज़ें हो गुज़री हैं, अब इनको करना नामुनासिब है और इनको इस तरह करना मुनासिब है। हम उसी चीज़ में मुझे लगता है कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं कि वो हम ना वो जो पॉइंट्स हैं, वो जोड़ नहीं सक रहे। हुँ, हुँ। नहीं, ये तो हमारे पास अब कोई अच्छी पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप हो ना हो, लेकिन पिछले 40 साल की जो तारीख़ हम अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें हम उन्हें कम से कम नफ़रत के नुकसानात ज़रूर पहुँचाएँगे, जो हमारी नस्लों ने देखे हैं, जिन्हें हमने आई विटनेस किए, और हमारी ये ख़्वाहिश होगी कि हमारी आने वाली नस्लें वो ना देखें। हुँ, वो नफ़रतें वो ना देखें, मज़हब की बुनियाद पे, एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मसलक की बुनियाद पे एक-दूसरे को काटते, मारते घूम रहे हैं, और उ उसे मज़हब का लबादा पहना दिया जाता है, उसे मज़हब से ताल्लुक़ का की जस्टिफ़िकेशन दे दी जाती है, या अपने अपने तौर पे ये तय कर लिया जाता है कि सामने वाला फ़र्द मुजरिम है। हालाँकि मज़हब के हवाले से हर जुर्म या हर गलती का मुहासबा करने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। और डे ऑफ जजमेंट जब हम बात करते हैं कि हम क़यामत पे ईमान लाए, तो बरोज़े हुँ, महशर रब इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला फ़रमाएगा, और रब का काम रब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हुँ। तो ये जो लोग गली, मोहल्ले, सड़कों, दुकानों, थड़ों पे बैठ के
ایک دوسرے کی ایمانیات کا جائزہ لیتے ہیں اور مقدار ایمان کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا را اس مشق سے باز رہیں۔ یہ کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے۔ آ، ہر فرد اپنے تئیں اپنے رب کو راضی کرنے کا جو راستہ اختیار کرتا ہے یا اس تک جو راستہ پہنچتا ہے، ہم میں سے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مذہب کو اختیار نہیں کیا، مذہب ہم تک پہنچا۔ ہم نے جس مذہب کے گھر میں آنکھ کھولی، ہم نے اس مذہب کو بلائنڈلی فالو کیا، جس مسلک کے گھر میں آنکھ کھولی، ہم نے اس مسلک کو بلائنڈلی فالو کیا، اور ہم نے اعتماد کیا کہ ہمارے فور فادرز جو کچھ کرتے آئے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے تصور رب کی پرستش کرتے آئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس بات پہ اپنے فور فادرز کو بلائنڈلی فالو کیا، تو ہمیں اس بات پہ بھی شاید اپنے فور فادرز کو بلائنڈلی فالو کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کسی اور کے بنے ہوئے راستے، کسی اور کے راستے کو مسمار کرنے کی یا اس میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے بالکل میں اس کانورسیشن کو اس طرح سے میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم اینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ میں کہیں پہ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کر رہی تھی اور ہم بات چیت کر رہے تھے، آپ نے جو بات کی کہ جو انسان جس فیملی میں پیدا ہوا وہ اس کے فور فادرز کو لے کے ویسے چل رہا ہے یا کیا ہے جو بھی ہوں، ساری چیزیں، میں نے آپ کے سوال آپ کے بات کرنے سے پہلے میں نے کنورژن والی بات کی تھی، تو اس میں یوزلی ہم کبھی بیٹھ کے اس طرح سے بات کریں تو کافی لوگ اس چیز کو اس طرح بھی پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کہ چلے وہ جس بھی اس میں پیدا ہو گئے یا کیا، لیکن اللہ نے یا ان کے اپنے گاڈز جو بھی ہیں انہوں نے اس کو عقل سمجھ دی ہے، وہ دیکھ سن ہوں، سمجھ رہا ہے، تو دے ہیو دی کیپیسٹی ٹو چینج دیئر ریلیجن، ٹو چینج دیئر سیکٹس، ٹو چینج دیئر وٹ ایور جس بھی وہ اس سے فرقے سے ہوں، یا مسلک سے۔ تو مجھے اکثر اس چیز کی کنفیوژن ہوتی تھی کہ دیکھیں بات کرنا اٹس ویری سمپل، اٹس ہوں، ویری ایسا جنیرکلی کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کے پاس عقل نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ چیز چینج کر دیں، لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے سوچیں اس چیز کو تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی اٹیچڈ ہے، آپ کے پراپر ہر چیز ایک ریچولز ٹریڈیشن ساری چیزیں اٹیچڈ ہیں۔ مجھے اکثر یہ چیز بڑا بادر کرتی تھی کہ یہ کتنی حد تک یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ کتنی حد تک یہ بہتر ہے، یہ چیز اس چیز کو بولنا کہ انسان کے پاس عقل اور سمجھ ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ جا سکتا ہے اور کس جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ میں ہوں، اس چیز میں بڑا کنفیوز ہو جاتی ہوں اکثر بھی، اور اکثر لوگ جب اس چیز کی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آئی یوز ٹو کیپ کوائٹ بیکاز میرے پاس ہوں، جہاں آنسر مجھے نظر آئے گا تب میں اس چیز کا آنسر دے دوں گی۔ ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنا کہ آپ کے پاس عقل سمجھ ہے تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا سیکٹ یا آپ اپنا ریلیجن یا آپ اپنی وہ چیز چینج کر دیں؟ ہوں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں نا میرا کہ ایک تو اس بات کو کرنے کے 2 زون ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو اپنے فیتھ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اصل فیتھ تو وہ ہے جس پہ میں موجود ہوں، اور تم عقل ہونے کے باوجود بھی اس پہ موجود نہیں ہو۔ تو آپ وہ دوسرے شخص کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں کائنڈا کہ یار میں حق پہ ہوں اور تمہیں حق کا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، عقل ہونے کے باوجود تم حق کو نہیں پہچان رہے، جلدی جلدی پہچانو اور اس طرف آؤ لائن کے۔ ایک تو یہ آ، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی بھی شخص کو آپ ٹیز کر سکتے ہیں اور اسے آپ کوئی اچھا عمل گن سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ میں اس چیز کو کمفرٹیبل نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دا آئیڈیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو عقل و فہم اور ادراک حاصل ہے اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس مذہب پہ رہنا ہے اور کس مسلک پہ رہنا ہے، تو صاحب جس مسلک پہ اور جس مذہب پہ جو فرد موجود ہے اس کی اس فریڈم آف چوائس کا احترام کریں اور اسے یہ حق دیں کہ وہ اس مذہب اور مسلک پہ پوری آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ وٹ اف مجھے کوئی شخص، اب تو پاکستان میں رہتے ہوئے میرے پاس فریڈم ہے نا کہ 99% لوگ مسلمان ہیں، وٹ اف اگر مجھے کوئی شخص میرا مذہب ترک کرنے پہ مجبور کرے، اسلام ترک کرنے پہ مجبور کرے، تو کیا ہوگا؟ کسی بھی ملک میں الحمدللہ ایسا کسی ملک میں ہوتا نہیں پوری دنیا میں کہ کسی بھی مذہب کو زبردستی چھڑوانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں یہ ہونا شروع ہو جائے
अमेरिका, रशिया, चाइना में ही होना शुरू हो जाए। लोग चाइना पे बाय द वे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमानों को जो है वो डी-रेडिकलाइज़ करने के लिए मज़हब से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं गया, मैं चाइना मैंने विटनेस नहीं किया। सुनी-सुनाई बातें या कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पढ़ी हैं और मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर मैं क्या राय दे सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ ऐसा होना शुरू हो जाए, तो फिर मुसलमानों पे क्या गुज़रेगी? तो जो स्पेस हमें अपने लिए चाहिए, अपने सच के लिए जो स्पेस हमें चाहिए, वो स्पेस हमें दूसरों को उनके सच के लिए भी देनी होगी। हमें दूसरों के सच, चाहे हम दूसरों के सच को सच ना मानें, लेकिन चूँकि ये उनका सच है, तो हमें उनके सच का एहतराम ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है और मैं इस चीज़ पे क्योंकि देखें हर किसी को वो एक बात है हम करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ हम बात करें तो फिर आप अगर अपनी बात कहीं रख रहे हैं तो आपके पास सामने वाले को सुनने के लिए भी वो कैपेसिटी और वो चीज़ होनी चाहिए कि हुँ, जब आप किसी को सच की आगाही कर रहे हैं या सच का कुछ बता रहे हैं तो फिर सेम गोज़ विद देम कि शायद जो वो बात कर रहे हैं उनके लिए वो सच हो। आप हुँ। अपनी बातों से और एक्शन से उनको मोल्ड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर चीज़ें इम्पोज़ करें। लास्ट लास्ट ईयर ये हुआ कि यहाँ एक सिचुएशन आई कि एक आलिम की राय को सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से पसंद नहीं किया गया। ज़ाती तौर पे मुझे भी वो राय पसंद नहीं आई उनकी और बहुत से लोगों को हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो राय पसंद नहीं आई। मारूफ़ आलिम है लाहौर के। तो एक इज़्तिराब था अंदर कि क्या किया जाए? कैसे किया जाए? नहीं समझ आ रहा था कि इसको किस तरह से इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो बिलाखिर मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि बजाय इसके कि किसी के ईमान का जायज़ा लेता फिरूँ, उसके फ़हम का जायज़ा लेता फिरूँ, उसके फ़हम की बुनियाद पे उसके मरातिब तय करता फिरूँ। अगर मेरे सैयदा खातून जन्नत के हवाले से जो एहसासात और अकीदत के मामलात हैं, उनको ठेस पहुँची है, तो इस पे मेरे प्रोटेस्ट का या मेरा जो कॉल ऑफ एक्शन है, वो ये होगा कि मैंने फिर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो लॉकडाउन डेज़ थे। तो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल इन की और उसमें 11-12 प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं और तमाम मसालिक के, तमाम मकतबा फ़िक्र के, उनके 1-1 घंटे के लेक्चर जो है वो सिर्फ़ सैयदा की शान बयान करते हुए वो लेक्चर्स थे उसमें। तो मेरे मुझे मुझे उसको कंडक्ट करने के बाद तस्कीन मिली कि दीज़ वर माय 2 पेनीज़। हुँ, मेरे अगर एहसासात को कहीं से मजरूह किया गया है या किसी राय से मेरे एहसासात मजरूह हुए हैं, तो उसकी का जो रास्ता मैंने अपने ज़ख्म पे मरहम रखने का जो रास्ता मैंने निकाला, वो ये मेरे सामने ये था कि सैयदा की शान को बयान किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जाए। दैट्स इट। हुँ। इस बुनियाद पे मैं लॉ ऑफ द लैंड हाथ में लेके किसी शख्स को कत्ल करने पे आमादा नहीं। और अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। हुँ, सारी दुनिया में मुख्तलिफ मिज़ाज के लोग रहते हैं, उनके मुख्तलिफ अकायद हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई अकायद नहीं है। तो उनकी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की वजह से अपने इर्द-गिर्द सिचुएशन क्रिएट कर लेना, ये किसी तौर पे काबिल हुँ। फ़हम नहीं है मेरे नज़दीक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी चीज़ की बुराई को बढ़ाने के बजाय आप अगर अच्छाई को बढ़ा दें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर तक रहती है हाँ। और बुराई ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो हुँ, मुझे लगता है कि इस खूबसूरत बात पे जो है वो अगर हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड करेंगे, तो मुझे इस चीज़ से एक मोटिवेशन ज़रूर मिल गई है कि हम बजाय लोगों की इस चीज़ पे टाँग खींचे कि हुँ। आपने ये काम गलत किया, बल्कि उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इसको ना करके आप कोई अच्छा काम ज़रूर कर सकते थे या कर सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। आई दैट्स व्हाट एग्री, आई आई एग्री और यहाँ पे तो सिचुएशन और सीरियस है कि हम टाँग नहीं खींचते। माशरा इस वक़्त गर्दन उड़ाता है। जी, ऐसे ही, ये बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है। खतरनाक सूरत-ए-हाल है। तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है और आई बिल्कुल, एग्री कि हमें इसका बहुत ख़्याल रखना है। हमें इस माशरे में लोगों को ज़िंदगी गुज़ारने का, उनसे हक छीनने का हमें कोई हक हासिल नहीं। ऐसे ही है। ना ही हमें ये हक हासिल है कि हम
लोगों के ईमान का जायज़ा लेते फिरें और ये तय करते फिरें कि किसकी ईमान की मिकदार कितनी है और कितनी मिनिमम थ्रेशहोल्ड क्या है, इससे ऊपर-नीचे क्या होना हुँ, चाहिए क्या ये हमारा काम नहीं है। इसका फ़ैसला बतौर मुसलमान मेरे नज़दीक इसका फ़ैसला बरोज़े क़यामत मेरा रब करेगा बेशक, और बिल्कुल, मैं अपने मामलात लेके वहाँ पेश होऊँगा और मुझे अपने मामलात की फ़िक्र करनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। इसके साथ-साथ नमीरा मैं आपको, आपकी जनरेशन को और बाकी जो दोस्त हमें देख सुन रहे हैं इस वक़्त मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बदतरीन अंदाज़ में कोरोना फैल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें। मास्क ज़रूर पहनें, हाथ ज़रूर धोएँ। वो जो लिक्विड होता है की कहंदे ने ओनू? सैनिटाइज़र जी, सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए हुँ, और अपने आप को महफ़ूज़ रखें। बिल्कुल। माशरे को महफ़ूज़ रखें, अपने घरवालों को, अपने अज़ीज़ों को महफ़ूज़ रखें। आपका बहुत शुक्रिया नमीरा। फिर बहुत होती है शुक्रिया। मुलाकात किसी एक और इंशाअल्लाह, मौज़ू पे, किसी एक और दिन। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।